आई थिंक 2023-2024 की फिगर्स देखते हैं जीआईसी में, वी कम टू नो दैट ऑल द 4 कंपनीज हैव गिवन पॉजिटिव ग्रोथ रही. इट वाज मोर देन 37,000 करोड़, 40,000 नियरली इट इज मोर देन. अगर हम ओरिएंटल में देखें it was 18,217%. Similarly in United it was nearly 19,000 crore. इस नहीं तो क्या है? We are performing well, our employees are performing well, our officers are performing well. Then why? तो साथियों, yes, there was some setback in profits. There is no doubt about it. But what happens? In fact, this was fault of the government policy. उसके लिए उन्होंने एडवाइजर भी नियुक्त कर दिए, अपनी टीम भी नियुक्त कर दी. और जो गवर्नमेंट क्रिएटेड कंफ्यूजन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, वो चेंज क्या आई कि कांग्रेस फाइनेंस मिनिस्टर जब निर्मला सीतारमण आई, शी अपोज दिस मर्जर, और वो ब्रांचेस ही इनको मर्ज कर दिया जाए या इनको क्लोजर कर दिया जाए. तो ये जो चेंजेस आई, चाहे आईआईटी की हम बात करें, आईआईटी. My name is J. Gurumurthy. I am the Vice President of All India Insurance Pensioners Association, representing more than 50,000 insurance pensioners across the country. We are holding a meeting conference today in Jammu. This is the J&K chapter of AIIPA, All India Association. So we are going to discuss about the issues of pensioners, especially general insurance pensioners. The government has been discriminatory towards general insurance pensioners. The long pending demand of increase in family pension from 15% to 30% as agreed in all the sector, government, bank, LIC, that is denied to general insurance pensioners. There are also issues concerning updation of pension, because we are getting the same old pension what we got at the time of retirement. It is not updated. Third thing is, very unfortunate, the government is charging 18% GST on even health insurance, sickness protection insurance. That also we are opposing. There are umpteen issues concerning the public sector general insurance companies. We want merger of all the 4 companies, general insurance companies, into one single corporation like LIC of India, so that we serve the interest of the common people in India. Thank you, sir. What's your demand? The demand is all the 4 public sector companies should be merged into a single corporation, so that we do not compete among ourselves. We compete against the private company. There are 30 private companies, 30 private companies. They are doing all unethical practices. We are unable to compete, so the government should decide to merge as originally agreed by the earlier finance minister of this country, Mr. Arun Jaitley. He decided, he announced in the parliament that 3 companies will be merged into one company. That is what we want now, to safeguard our company, to safeguard the interest of employees and the pensioners. मैं बशीर अहमद, मैं जनरल इंश्योरेंस रिटायरीज एसोसिएशन का एट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ जम्मू में. तो आज हमारे पे यहाँ पे जम्मू में ये शालामार रोड पे यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस रिटायरीज एसोसिएशन जो एफिलेटेड है ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ, उनकी आज यहाँ पे हमारी पहली मीटिंग है. यहाँ हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है कॉमरेड जे गुरुमूर्ति जी, दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम फ्रॉम चेन्नई. और यहाँ हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट अरुण कालिया जी आए हुए हैं, उनके साथ उनकी टीम आई हुई है सारी पंजाब की. उसके साथ में हमारे चंडीगढ़ के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी सिंह जी, वो आए हुए हैं. और हमारे जो रिटायरीज़ हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 4 सब्सिडीज़ हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया है, ओरिएंटल है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी और रिटायरी एसोसिएशन के प्रधान श्री ये अपने वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं. तो ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस थी. हमारे बहुत से जो इश्यूज़ थे पेंशनर्स के, उनके ऊपर कॉमरेड
गुरुमूर्ति जी ने पूरी आज वो हमें जानकारी दी है। हम और हमारी ये मेन डिमांड थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं 4 कंपनीज़, इनको एक में मर्ज कर दिए जाए। और इसके बाद में हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे मेडिक्लेम के हैं या हमारी पेंशन की रिविजन्स के हैं या हमारी फैमिली पेंशन्स के इश्यूज़ हैं, वो इश्यू सारे डिस्कस हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डिमांड है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी कारण ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस जम्मू में हुई है और हमारा संगठन भी यहाँ पे बना है। और हमारी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमेशा जो पब्लिक सेक्टर जो काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी 4 सब्सिडीज़ है, जहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सोशल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। हमारा जो रूरल सेक्टर है, यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारी कंपटीशन जो है प्राइवेट कंपनी के साथ है। तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं, यहाँ पर सोशल सेक्टर है उसमें उनका ध्यान नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही निवेदन है, जब भी देश के अंदर जब भी बुरा वक्त आया, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आए, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बड़ा काम किया है और लोगों की मदद भी की है और इमीडिएटली क्लेम्स भी सेटल किए हैं कंपेयरिंग विद प्राइवेट कंपनीज। तो हमारी निवेदन ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक कार्य है और हमारे जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो कॉमरेड गुरुमूर्ति जी ने आपको बताया, वो ही हमारी डिमांड है। उसी सिलसिले में हमारी जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे आज। शुक्रिया।